today our speaker is Acharya Amritesh Kumar Bhaskar. He is a highly spiritual practitioner and researcher who has dedicated 15 years to studying spirituality, mantras, and their effects. Namaste. Amritesh ji has revived mantra therapy, where physical, mental, and spiritual issues of a human being are addressed through energies. And this process primarily works by balancing a person's internal energy. Welcome, Amritesh ji, Thank and you. Thank you. please tell us about yourself. Actually, I am Amritesh. My complete detail is Amritesh Kumar Bhaskar. I love to research and development as well in spirituality. I just want to understand the things, whatever is mentioned in the Vedas, what was the people who invented mantras, how our language created, which language is best and from the beginning. So this research make me very perfect in sense of the understand the mantras. Basically, I had started my things on the astrology. I started with astrology, palmistry, and voice reading, face reading, like that, because I had to compile all the things. It's accuracy actually, and I understand completely the astrology is other uh, uh, our ancestors was trying to find a way to understand our things. But it was under development. It was not completely developed, but it was under development, and we must need to work out on those things they left in between, like astrology, like palmistry, like face reading, like voice reading, like our physical strength, our behaviors. So many things can be helpful to understand our future, present, and as well past. So you feel that the research work is still going on, and there are a lot of the things in Vedic astrology that needs to be explored. Exactly, exactly. The things are going on, and I had collected about 1 lakhs of data, and I'm still trying to find out the person whose life is going on smoothly, and I am looking after their problems. I'm looking after their health issues. I'm looking after everything about those people who are connected with me, especially the people who are very spiritual, and the person who doesn't want to follow these things. I just talk to him, and I try to make them believe, and through the predictions, and through the predictions about their behaviors, not about the planetary positions and the Raj Yogas. And they believe now. They believe that they understand that yes, their behavior is completely belongs to our prediction and relates it. So it is very helpful to understand those things. And still, our research is going on. And on the basis of the research, still I am finding so many ways to solve our health issues related to like a DMD, like autism, like other major issues which are not. Uh, in current situation in the medical science is not able to solve those kind of problems. ओके ऑल राइट सो आपके लिए हमारे पास कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब हजारों लोगों की तलाश होती है सो बेसिकली टुडे जरूर. आवर टॉपिक इज इट पॉसिबल टू रीबिल्ड ट्रस्ट आफ्टर डाइवोर्स and all our Hmm. question will revolve around this topic today so it is a seriously nice topic, and it is very very important to understand our relationship. So I will compile it, and when I started my investigation about the okay relationship, I understand completely how it happened. तो मैं थोड़ा सा इस पे डिटेल्स में बात करूंगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल रिलेशनशिप रिलेशनशिप को समझना जरूरी है.
मैरिज एक अनदर पॉइंट है, बट रिलेशनशिप क्या होता है और ये कैसे बिल्ड होता है, जैसे कि हमारे पूर्वजों का कहना है कि जो जोड़ियां बनती हैं वो ऊपर से बन के आती हैं। हम्म, तो इट इज कम्प्लीटली ट्रू। यहाँ पे तीन चार चीजें हैं जो पॉइंट आउट मैं करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट थिंग कि किसी भी चीज के होने के लिए, कोई भी इवेंट हो, कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी हम्म, क्रिएशन हो, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट होता है टाइम, सेकंड पॉइंट होता है प्लेस, एंड थर्ड पॉइंट होता है मैथमेटिक्स। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड की मैंने बात की कि प्लेस कौन सा है एंड टाइम कौन सा है, जिस टाइम और जिस प्लेस पे आप अवेलेबल हैं, उस हम्म, टाइम पे उस समय पे लॉज ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपसे जो टकराएगा, और उस एस्ट्रोलॉजिकली उस पार्ट की अगर दशा चल रही है, तो डेफिनेटली यू विल बी इन रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। ये आपको भी नहीं पता होता, किसी को पता नहीं होता, जस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम रिवेल इस तरह से कर सकते हैं किसी व्यक्ति का, कि उसके रिलेशनशिप किस तरह से होंगे। क्या एजुकेशन, जहाँ पे वो कुछ पढ़ाई कर रहा है, कुछ सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, वहां पे होंगे, या हम्म, फिर ऑनलाइन डिजिटली होंगे, या हम्म, किसी टेम्पल में, मंदिर में होंगे, या हम्म, कोई स्पिरिचुअल जर्नी में होगा, या फिर घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होगा, या फिर तो इसको हम तीन कैटेगरीज में भी बांटेंगे, एक लीगल और एक इलीगल। लीगल इस सेंस की वो रिलेशनशिप जिसको हम लोग कैरी ऑन कर सकते हैं, जिसमें मैरिज पॉसिबल हो, जिसको हम रिवेल करें लोगों के सामने कि हाँ हम रिलेशनशिप में हैं, हम्म, और वी जस्ट वांट टू मैरी। तो ये होता है फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस के कॉम्बिनेशन से। जो ओके, एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करें, नाइन्थ हाउस फिफ्थ हाउस के कॉम्बिनेशन के साथ सेवेंथ हाउस जब मिलता है। जब हम्म, इलीगल रिलेशनशिप की बात करें, तो सेवेंथ हाउस का कॉम्बिनेशन जब थर्ड हाउस से हो जाए, तो इट इज इलीगल रिलेशनशिप। पहले भैया फिर सैया वाली बात आती है। ओके, और अगर जब हम और आगे जाते हैं, जब सेकंड हाउस का सेवेंथ हाउस से कॉम्बिनेशन होता है, तो वहां पे जो इलीगल रिलेशनशिप बनते हैं, या तो फीमेल है तो या तो दीदी के देवर के साथ, या ओ, फिर अगर मेल है तो भाभी के साथ रिलेशनशिप बनने के चांसेस होते हैं। ओके, तो ओके, ऐसे रिवेल किए जा सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप किसके साथ होंगे। कलीग के साथ है तो टेंथ हाउस सेवेंथ हाउस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपका फैमिली मेंबर्स अदर हैं, जैसे किसी चाचा के साथ है या समथिंग लाइक दैट, माय तो गॉड, वो सारी चीजें रिवेल की जा सकती हैं। ओके, अब हमारा हमारा पॉइंट ये है कि हम किस रिलेशनशिप के बारे में बात करें, क्योंकि रिलेशनशिप जो स्टार्ट होने के पीरियड ऑफ टाइम होता है, वो होता है 14 to 18 स्टार्टिंग पीरियड, जो मून के कारण होता है, चंद्रमा के कारण होता है। और चंद्रमा सबसे पहले हमारे मन में रिलेशनशिप के लिए, किसी के प्रति इमोशंस को जगा देता है। तो चंद्रमा का जो पीरियड स्टार्ट होता है वो आफ्टर 14 ईयर्स होता है। एंड प्यूबर्टी जो हमारी चीजें होती हैं, जब हम अडल्ट में आते हैं, यंगस्टर में आते हैं, जैसे ही हम बचपन छोड़ते हैं, तो वैसे ही हम प्यूबर्टी में आते हैं, और वहां से शुरू होती है हमारी अट्रैक्शन। लॉज ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली वहां पे लागू होना शुरू होता है। तो फर्स्ट रिलेशन जो हमारा स्टार्ट होता है, जरूरी नहीं कि वो बिल्डअप हो जाए। बिल्डअप के लिए भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कि हमारा जिस पे हम अट्रैक्ट हों, जिससे हमारी बातें हो रही हैं, जिसके बारे में हम कुछ फील कर रहे हैं, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाए, ये जरूरी नहीं है, बट हो सकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ में। सेकंड, सो ये अट्रैक्शन तो 14 ईयर्स के बाद शुरू हो जाता है, और कब तक रहता है, ये तो जीवन भर रहता है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक किसी ना किसी पे टाइम पीरियड के अंतर्गत अट्रैक्ट होते रहेंगे, एंड आपके मन में किसी ना किसी के प्रति भावनाएं उत्पन्न होती रहेंगी। अब ये भावनाएं किसी रिलेशनशिप को जन्म देती है, नहीं देती है, आप उसके साथ बॉन्ड अप हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, इसको भी रिवेल किया जा सकता है। इट कैन बी रिवेल्ड बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी डिग्री। अगर प्लैनेट्स की डिग्री अच्छी है, ना हाई हो ना लो हो, इट्स मीन कि 10 डिग्री से प्लस में हो एंड 25 डिग्री से बिलो में हो, तो चीजें हो जाती हैं। अदरवाइज चीजें फील तो होती हैं कि हो रही हैं, बट होती नहीं है। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन होगा, what are some हम्म। early signs that our relationship is heading towards divorce? A marriage is heading towards divorce. अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, दोनों से हम बात करते हैं। एक तो प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें कैसे होती हैं, हम कैसे जज करते हैं, कैसे चीजों को देखते हैं।
और दूसरी होती है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी क्या करता है। तो एस्ट्रोलॉजी जन्म के समय ही प्रिडिक्ट कर देता है कि योर रिलेशनशिप विल बी स्ट्रगलफुल और नॉट। आपके रिलेशनशिप हैं तो कैसे होंगे, बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी पोजीशन। अगर सेवेंथ हाउस लॉर्ड की पोजीशन नवमांश में, लग्न में एंड मून चार्ट में कहाँ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जज कर लेंगे इमिडिएटली, और वैसा ही होगा। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं कि कौन से ऐसे रिलेशनशिप हैं जो डिवोर्स की तरफ जाते हैं या सेपरेशन जहां पे पॉसिबल है, तो बेसिक तौर पे यहाँ पे हम मेंटली और किसी को गाइड करके और किसी को बोल के ये मना नहीं कर सकते कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा या बच जाएगा। इसके इसको फॉलो करने के सिर्फ एक ही तरीके हैं कि आप उस रिलेशनशिप को सेल्फ डिसीजंस में मत करें। आपको उस रिलेशनशिप को करने के लिए पेरेंट्स की परमिशन या किसी और लोगों को इन्वॉल्व करें, ताकि आपके जो पार्टनर हैं अगर कोई डिसीजन करने जा रहे हैं सेपरेशन का, तो वहां पे वो लोग मेडिएशन कर पाए। अगर मेडिएशन करने वाले लोगों की कमी है तो ये रिलेशनशिप टूटने के चांसेस 99% होते हैं। लव मैरिज ये इसीलिए ऐसे चांसेस ज्यादा होते हैं टूटने के, बिकॉज कि वहां पे मेडिएट करने के लिए बहुत कम लोगों की स्पेस होता है, बहुत सारे लोग वहां पे मेडिएट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसके टूटने के चांसेस बहुत पेरेंट्स होते नहीं हैं। कर जहां पाते तक, लव मैरिज में मीडिएशन, नहीं कर यस यस, पाते। मेडिएट कर पाते हैं, और बाउंडेशंस भी नहीं होती ना, लड़की के ऊपर कोई बाउंडेशंस होते हैं ना हम्म। लड़का के ऊपर होता है। वो अपनी मर्जी से डिसीजंस करते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, डजेंट मैटर। और वो जो डिसीजंस होते हैं वो ईगो में आके होते हैं, जिद में आके होते हैं। अ, वो सारी चीजें जो है एक आवेश में आके होता है। और ऐसे डिसीजन के बाद हालांकि दोनों को रोना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि दोनों खुश होते हैं, दोनों ही रोते हैं, बाद में भी रोते हैं आफ्टर सेपरेशन। बट कर क्या सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये आता है कि कोई एक व्यक्ति में कुछ ऐसी बात हो, धोखा हो गया हो, कोई एक फीमेल के साथ धोखा हो गया या किसी मेल के साथ धोखा हो गया, तो वैसे कंडीशन में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल, अब उसको बाइफरकेट करेंगे तो कई एक पॉइंट्स निकल के आएंगे, हम उस पॉइंट पे जाएंगे तो चीजें लंबी खींच जाएंगी। हम्म। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कुछ उम्मीद के साथ जुड़ते हैं। उनकी कुछ अपनी इस- नीड्स होती हैं, उनकी कुछ जरूरतें होती हैं, उनके कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और उसको उसको जी बिल्कुल, तो उसको देखते हुए वो जुड़ते हैं। अगर हम्म। वहां पे वो चीजें फुलफिल नहीं की, ठीक हम्म। है, तो फिर चीजें सेपरेशन की ओर जाने लगती हैं। तो इसको एक तरह से बोलेंगे कि मेंटली जो आपने प्रिपेयर करके शादी की थी वो हम्म। फुलफिल नहीं हुई, और जिसके कारण आप अब कंप्रोमाइज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, आप मूव ऑन करना चाहते हैं। तो ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये हुआ कि नेचर, बाई द नेचर, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनकी वाइफ बहुत अच्छी अच्छी जॉब करती हैं, हम्म। हस्बैंड कुछ नहीं करते, पर हस्बैंड क्या का प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों लड़कियों के तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि फीमेल क्या करती है कि नहीं भैया मुझे तुम्हारे साथ लाइफ नहीं सरवाइव करनी, तो दे विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है। हम्म। ऐसा ही अपोजिट भी होता है, फीमेल के साथ मेल भी डिसाइड करते हैं कि नहीं तुम्हारा चूंकि बिहेवियर अच्छा नहीं है या कैरेक्टर अच्छा नहीं है, दैट्स वाई कि मैं आपको छोड़ने की कोशिश करूंगा। ये तीन चीजें हैं मेजर, जिसको हम लोग फॉलो करें, अगर उस पर बात करें, उस पर डिस्कशन करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो वो चीजें सॉल्व हो सकती हैं। और ये अर्ली साइंस है, अगर ये तीनों चीजें हैं लव मैरिज में, अगर मेडिएशन की नौबत नहीं है, हम्म। मेडिएटर कम है, तो वो सेपरेशन की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि विवाद होंगे और उसके सेपरेट होने के चांसेस 99% है अगर मेडिएशन नहीं है। तो फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं लोगों के, अगर वो कहीं ना कहीं कम होते हैं, अगर हम्म। कोई एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा है, सामने वाला उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, या झूठ बोल के शादियां हो गई, या हम्म। फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई जहां पे धोखे की बात हो, तो वहां पे टूटने के चांसेस 100% है। एंड थर्ड पॉइंट, अदर कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो जीरो हो गया। हम्म। मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूँ, जस्ट लाइक कि अगर मैं एक दिन चावल खा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए सूट करता है कि मैं रोज चावल खा रहा हूँ, भात खा रहा हूँ, या रोटी खा रहा हूँ, या पनीर खा रहा हूँ, या हम्म। फिर चिकन खा रहा हूँ, रोज एक ही चीज खा रहा हूँ, तो मेरा मन ऊब जाएगा और मुझे चाहिए कुछ नया। तो हम्म। ये सेटिस्फेक्शन की बात हो गई। ये तीनों चीजों में शादियों के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वैसे खासकर उन लोगों के साथ जो इन चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। हम्म। ओके।
Acha, my second question is, can astrology help in understanding one's role in repairing the broken relationship? Exactly. Everyone want to repair their relationship. Everyone, not female, not male. Everyone wants to be in healthy relationship. But here is important to understand. Uh, ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक कहावत है और ट्रू भी है कि कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में मूव ऑन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। एक लड़की की शादी होती है और शादी एक अच्छे जेई से होती है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। मैं नाम रिवील नहीं करूंगा। Hmm. और वो लड़का अपनी मम्मी की बातों को ऐसे मानता है और वो जॉब करता है, कहीं दूर जॉब करता है। लड़की को घर में रहना पड़ता है और वहां पे उसकी जो सासू माँ है वो बहुत सारी चीजें करती हैं, तंत्र करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। एंड वहां पे उसकी सासू माँ का रोल ऐसा होता है कि वो अपने बेटे के घर को खुद बर्बाद करना चाहती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। Hmm. तो रीजन कई हो सकते हैं। इस Hmm. रीजन को हम लोग कहीं ना कहीं मेन समझ लेते हैं कि नहीं उसकी माँ ही बुरी है। हम ये नहीं समझते हैं कि नहीं मेरा रिलेशनशिप खराब होना ही है, चाहे मेरी शादी कहीं भी होती है। Hmm. इट इज नॉट ए मैटर कि इस घर में हुई, इस लड़के से हुई तो मेरी शादी खराब हो रही है और सास बीच में पड़ी, ऐसा नहीं है। कहीं भी उनकी शादी होती, किसी के साथ भी होती, तो वो शादी टूटती। और Hmm. इट कैन बी रिलेटेड टू द एस्ट्रोलॉजी। तो हम अगर एस्ट्रोलॉजी से ये चीजें समझ रहे हैं कि आपकी शादी कहीं भी हो रही है और आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप और डिस्टेंस रिलेशनशिप है, Hmm. आप एक साथ रह नहीं सकते, रहेंगे तो आप लड़ेंगे। तो Hmm. एक दूसरे से अगर दूर रहते हैं और Hmm. वहां से आप चीजों को करते हैं, टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, तो आपकी रिलेशनशिप लंबी चलेगी, हेल्दी चलेगी। बट अगर आप एक साथ जैसे ही होते हैं तो आप झगड़े करेंगे और झगड़े करके आपके बीच में बहुत सारी चीजें होंगी, हो सकता है सेपरेशन की तरफ चला जाए। Hmm. तो हम इसको कंप्लीटली रिवेल कर सकते हैं, परंतु ये बताना कि कौन इस रिलेशनशिप को रिपेयर करना चाहता है और Hmm. कौन कर सकता है, इसके लिए समझना ये होगा कि अगर रिलेशनशिप टूटने ही वाला है तो Hmm. कोई रिपेयर क्यों करना चाहेगा। और कोई रिपेयर करना चाह रहा है तो फिर वो टूटेगा ही क्यों। Hmm. ट्राई टू अंडरस्टैंड। Hmm. क्योंकि अगर चीजें दोनों तरफ, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रही हैं, लड़का तो अपने, जैसे कि मैंने अभी इंजीनियर की बात की, लड़का तो अपने मूड में है, वो तो काम कर रहा है, अपना जॉब कर रहा है, प्रोसेस कर Hmm. रहा है। Hmm. प्रॉब्लम तो मेजर लड़की को हो रही है। अब Hmm. लड़की यहाँ पे कहेगी कि नहीं मुझे रहना है, तो लड़का उसको मैनेज कर सकता है। वो अपनी बातों को बताए अपने हस्बैंड से कि सास ये कर रही है, ऐसे कर रही है, प्रॉब्लम्स कर रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार में नहीं समझ सकता, कई बार में समझेगा, प्रूफ्स देना पड़ेगा, ये सारी प्रोसेस करनी Hmm. पड़ेंगी। इट्स मीन कि लड़की चाहती है कि रिलेशनशिप Hmm. सेव हो। बट Hmm. अगर वो मूव ऑन डायरेक्टली कर जाती है बिना डिस्कशन के हस्बैंड के साथ, तो फिर हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि लड़का के पास फिर ऑप्शन क्या बचेगा। Hmm. सेम है, लड़की के साथ भी होता है। Hmm. लड़की से शादी हुई, लड़का गया विदेश, वहीं पे किसी और से वो शादी कर लिया, यहाँ तो Hmm. सेपरेशन भी नहीं हुआ, डिवोर्स भी नहीं हुआ, वो Hmm. कोई और शादी में इन्वॉल्व हो चुका है। अब लड़की क्या करे यहाँ पे। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टूटना होगा तो दोनों के रोल होंगे, है ना। Hmm. और किसी के शॉर्ट टर्म रोल होंगे, किसी के लॉन्ग टर्म रोल होंगे, अब तभी टूटेगा। और कि अगर किसी के रोल ऐसा है कि कोई चाहता है कि नहीं मैं रिपेयर ही करूं, इट्स मीन रिपेयर करने का मतलब हुआ Hmm. कंप्रोमाइज। Hmm. अगर आपको रिपेयर करना है तो किसी ना किसी को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और 110% कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तब जाके रिश्ते नहीं टूटेंगे। अगर 1% भी Hmm. कंप्रोमाइज में कहीं कमी आती है Hmm. तो रिश्ता उसी समय टूट जाएगा। Okay. तो अच्छा, इट हमारा कैन बी रिवेल्ड। हम्म, बिल्कुल। हाँ, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन वन इम्प्रूव कम्युनिकेशन ड्यूरिंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशन अबाउट ड्राइवर्स? हाँ, हाउ कैन, हाउ कैन की इम्प्रूव एक, कम्युनिकेशन एग्जैक्टली इस तो तरीके से। इसमें मैं हम्म. एक बात बता रहा हूँ। कई तरह के लोग होते हैं, कई हम्म. तरह के उनके बिहेवियर्स होते हैं, और जो जैसा होता है उसको वैसा ही मिलता है। लॉज ऑफ हम्म. अट्रैक्शन। यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ हम्म. कि एक अमीर को एक गरीब नहीं मिल सकता, है ना। ओके. एक बदतमीज को एक बहुत रिप्यूटेड नहीं मिल सकता। क्लियर। एक बहुत बुद्धिमान को एक मूर्ख नहीं मिल सकता।
ठीक है। अच्छा। these are the मेजर लॉज ऑफ अट्रैक्शन। अगर कोई इत्तेफाक से कनेक्ट हो गया है तो वो शॉर्ट टर्म कनेक्शन है, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने के कनेक्शन है। किसी एक प्लैनेट के स्ट्रांग होने से वो कनेक्शन है और वो टूट जाएगा। क्लियर। हम्म। अब आती है बात की कम्युनिकेशन की बात। तो कम्युनिकेशन, अगर किसी की शादी किसी व्यक्ति से हो रही है, या किसी का किसी के साथ अटैचमेंट है, या किसी किसी के साथ रिलेशनशिप है, तीनों में आते हैं, नॉट ओनली मैरिज में, नॉट ओनली मेल फीमेल रिलेशन, ऑल रिलेशनशिप में आते हैं। आप उसी को अट्रैक्ट करेंगे जैसा कि आपका कम्युनिकेशन है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो डेफिनेटली आपके आस पास के 90%, 99% लोग वैसे ही होंगे जिनकी कम्युनिकेशन फ्रूटफुल होगी, जिनकी कम्युनिकेशन स्वीट होगी, जिनकी कम्युनिकेशन हेल्दी होगी, जिनकी कम्युनिकेशन एक जादुई वाला होगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन से आग बरस रहे हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन, आप बात कर रहे हैं उससे आग के गोले बरस रहे हैं, उससे लोगों के दिल को चोटें पहुंच रही हैं, तो आपके सर्किल में जितने भी लोग होंगे, आपके फैमिली में जितने भी लोग होंगे, सब वो एक ही जैसे होंगे। ठीक है। उन सब का एक ही होगा कि वो भले स्लो बोले, लाउड, और मैं वॉइस की बात नहीं कर रहा कि वो कितना जोर से बोलेगी, कितना देर, मैं उस टोन की बात कर रहा हूँ बट जिस नेगेटिव में टोन में, बात करेंगे सभी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कि जिससे सामने वाला हर्ट हो। तो वो सब वैसे ही होंगे। और वहां पे अगर हम किसी व्यक्ति को, जहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, जो हर्टफुल कम्युनिकेट कर रहे हैं या जो निगेटिव कम्युनिकेशंस हैं, वहां पे अगर पॉजिटिव कम्युनिकेशन वाले को 5 मिनट भी बैठा देंगे ना, तो दोनों भाग जाएंगे एक दूसरे से। ओके। खासकर पॉजिटिव वाला 1 मिनट नहीं टिक पाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब रही सवाल कि कैसे कम्युनिकेट करके चीजों को ठीक किया जाए, तो इसके लिए कोई ऑप्शन है नहीं। इसका एक ही ऑप्शन है कि दोनों के कम्युनिकेशन को ठीक कर दिया जाए, कि अच्छा। दोनों थोड़ा सा फ्रूटफुल और स्वीट बात करें। इसके लिए हम मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इन लोगों की कम्युनि, ऐसे भी जनरली अगर कोई व्यक्ति में कोई ऐसा बोलने मंत्र की है इच्छा। जो पढ़ने से कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकता है लोगों का? 100%, 100%। जैसे कि एक देखना पड़ेगा कि, अभी। देख, अगर आप अटक अटक के बोल रहे हैं, यानी हम्म। कि आप तोतले हैं, अगर हम्म। आप की जो साउंड आ रही है वो क्लियर नहीं है, तो हम्म। फिर आपको इसके लिए मून चैंटिंग करवा देते हैं। हम मून चैंटिंग करवा के कम्युनिकेशन क्लियर कर देते हैं। अगर आपकी फ्लू अच्छी नहीं है, फ्लुएंसी नहीं अच्छी है, आप बहुत हर्ट करते हैं बातों से, लोगों को टॉर्चर करते हैं, दिल को धक्का पहुंचता है, चोट लगती है, अगर ऐसा आपका कम्युनिकेशन है, तो इसके लिए हम वहां पे वेनस के मंत्र को करवाते हैं। अब दोनों चीजों के लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, मून भी इंपॉर्टेंट हो गया, वेनस भी इंपॉर्टेंट हो गया, कि फ्लो भी हो, जी। तोतलापन भी ना हो, वॉइस जो है वो क्लीन और क्लियर आए, ताकि सामने वाला समझ पाए। तो इसके लिए हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो कंबाइंड मंत्र है। ओम ह्रीम नमो अरहंतानम, ये जैन मंत्र है, और इससे फ्लो क्लियर हो जाते हैं, कंप्लीटली क्लियर हो जाते हैं। ओके जी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज और बताऊंगा, हम्म। कम्युनिकेशन की बात आई तो हम्म। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने मदर टंग को प्रीफर ज्यादा करते हैं। जैसे कि कोई हिंदी भाषी है तो उसकी हिंदी बहुत अच्छी होगी, कोई बांग्ला है तो उसकी बांग्ला बहुत अच्छी होगी, कोई हम्म। इंग्लिश है तो उसका इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, बट हम्म। अदर लैंग्वेज सीखने में उसको दिक्कत आएगी। हम्म। ठीक है। क्योंकि हम्म। वो बोल नहीं पाएगा, उसको आता होगा बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ऐसे बिल्कुल। बहुत सारे मैंने इंडियंस थे जो कि यूएसए में हैं, उनको मैंने शुक्र के मंत्र करवाए, सेशंस करवाए, और उनकी जो कम्युनिकेशन इंग्लिश की थी वो अच्छी बेहतर हो गई, पहले से कई गुना बेहतर हो गई। उनका कहना ये था कि मुझे बोलने में दिक्कत होती थी, अब मैं फ्लू में बोल पा रही हूँ। तो ये जो फ्लुएंसी है अदर लैंग्वेज सीखने की, वो हम्म। फ्लुएंसी आ जाती है इसी से वेनस के मंत्र से। तो आपने यही वाला जो बिल्कुल। बोला, ओम बिल्कुल। क्रीम अरहंताय नमः। ओम ह्रीम नमो नमः अरहंतानम। अरहंताय। आपके यस। ओके, यस। ठीक है। मेरा फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए। कैन एन हम्म। एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट वेदर अ रिलेशनशिप विल ब्रेक? डेफिनेटली, 110%। ओके। Astrologer will predict how many relationship in your life, when it will start, how it will start, uh, and also when it will break. ओके। ओके, ग्रेट। Okay, my fifth question to you. Is it possible to avoid divorce by taking astrologers' advices?
Separation is a very difficult thing, which to kindly try to understand. अगर separation होना है, it is हम्म, pre-decided because astrology only can read the things because the things are pre-decided. तो अगर pre-decided है तो उसको क्या बदला जा सकता है? तो it is a very very little chance कि उसको change किया जा सकता है। बट अगर हम बिहेवियर चेंज करें किसी के, तभी वो बदला जा सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। बिहेवियर इन सेंस कि जो एक्सपेक्टेशंस लड़के की है, जो हम्म, एक्सपेक्टेशंस लड़की की है, वो हम्म, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना अ, हम्म, अगर पॉसिबल होगा तो यस, कैन बी पॉसिबल कि चीजों को रोका जा सके। क्योंकि लड़की अगर कंप्रोमाइज करती है तो वो कितने समय तक कर पाएगी? वो कौन हम्म, सा टाइम होगा जब तक वो करे? अगर लड़का करता है तो वो कब तक कर सकता हम्म, है? अगर वो कंप्रोमाइज कर ही रहा है तो सेपरेशन की बात ही कहाँ से आ रही है? सेपरेशन हम्म, होने की नौबत ही नहीं आएगी ना। वो कहेंगे कि नहीं, हमको सेपरेट नहीं होना, भले हम घूट घूट के जिए, दिस इज नॉट ए मैटर, लेकिन हम सेपरेट क्यों होंगे? लेकिन जब सेपरेशन की बात ही आ रही है, इट्स मीन की चीजें हद से बाहर हो चुकी है और कॉम्प्रोमाइज के मूड में कोई नहीं है, ना हम्म, मेल है ना फीमेल है। ऐसे कंडीशंस में हमको किसी को मोटिवेट करके, किसी को समझा के, या दोनों का काउंसलिंग करके चीजों को कहीं हद तक टाला जा सकता है, थोड़े समय के लिए, है ना। ओके, लंबे समय के लिए नहीं, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, टाला जा सकता है कि अभी जैन में मतलब वो जुलाई में हो जाए, जुलाई तक आप इसको संभाल लो, तो जुलाई के बाद चीजें नॉर्मलाइज होने लगेंगी, ऐसा किया जा हम्म, सकता है। यस, इट कैन बी पॉसिबल थ्रू द एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस कि आप जुलाई, जून जुलाई तक इसको मैनेज कर लो, आप हम्म, अगस्त तक मैनेज कर लो, फिर चीजें नॉर्मलाइज होने लगेंगी, या जो सेपरेशन के बहुत चांसेस बन रहे हैं, ये थोड़ा सा डल हो जाएगा पीरियड, तो हम्म, फिर आप उसमें अच्छे से फिर चीजों को, कम्युनिकेशन फिर स्टार्ट करके चीजों को मैनेज किया जा सकता है। तो ये हम्म, कर सकता है कि हम टाइम प्रिडिक्ट कर दें कि इस पीरियड ऑफ टाइम में ये चीजें ना कर की जाए, ये हम्म, चीजें की जाए, और ऐसे करके चीजों को मैनेज किया जा सके। तो और ये भी कितने परसेंट चांस है कि ये चीजें हो पाएंगी? क्योंकि हम्म, चीजें दोनों तरफ से होती हैं, और दोनों व्यक्ति आपके पास तो आ नहीं रहा है एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन के लिए, कोई ओके, एक ही आएगा। हाँ, ऐसे कंडीशन में क्या चांसेस हैं? तो ऐसे कंडीशंस में है चांसेस कि हम उसको कैसे भी करके होल्ड करें। उसके लिए हम मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं कि लड़की के प्रति जो मंत्रास हैं, जैसे कि अगर आपको कोई, हम्म, एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजी ये हम्म, कहता है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ए से लेकर जेड तक, उसके कारण स्वयं आप हैं। हम्म, आपके चीजों में प्रॉब्लम है, इसलिए वो चीजें आपको वैसी मिल रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर फिफ्थ हाउस कमजोर है तो आपका एजुकेशन खराब होगा, आपकी मेंटालिटी खराब होगी, आपका ब्रेन वीक होगा। अगर आपकी प्लैनेट्स वीक हैं तो उससे जैसे कि सन वीक है, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री का है, डिग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपके जो सन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो होंगी, कॉन्फिडेंस, जैसे बोन कमजोर, कॉन्फिडेंस का कम होना, बोन का कमजोर होना, फियर फोबिया होगा, एग्जाम फोबिया होगा, हाइट फोबिया होगा, वाटर फोबिया होगा, ये सारे ओके, फोबियाज होंगे। अगर सन 25 डिग्री से ज्यादा है तो फिर वहां भी प्रॉब्लम आएगी कि ईगो, डिग्निटी एंड ये सब ओके, फालतू चीजें दिमाग में ओके, बैठेंगी। उसके अलावा अगर हम मून की बात करें, मून की डिग्री कम है तो कम्युनिकेशन, मतलब आप अपनी बातों को रख ही नहीं पाएंगे सामने वाले के साथ, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। सो आप बता रहे थे प्लैनेट का डिग्री अगर कम है तो भी दिक्कत है, अगर ज्यादा है तो भी दिक्कत है। बिल्कुल, प्लानिट की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री जब उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर हम पेपर पे समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो सर्कुलर पाथ है वहां पे प्लैनेट्स किस पोजीशन में होगा, क्योंकि 30 30 30 डिग्री के जो हमारे हाउसेस बटे हुए होते हैं, वो हाउसेस की डिग्री होती है। और वो हाउसेस की जो डिग्री होती है उसमें प्लैनेट की कोई, जो कि प्लैनेट की डिग्री कैसे हम मेजर कर सकते हैं, पोजीशन की डिग्री हम मेजर करते हैं। तो पोजीशन की अगर डिग्री हमारी वीक है, या बहुत ज्यादा हाई है, या बहुत ज्यादा लो है, तो वहां पे जो इफेक्ट्स होंगे उसमें कमी आ जाएगी, या फिर उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमारे सन की डिग्री, हम एक प्लानेट पे ही डिस्कस कर लेते हैं, हम्म, सन की डिग्री बिलो 10 है, तो बिलो 10 का मतलब ये हुआ कि सन से रिलेटेड जो हमारी बॉडी, जैसे कि बोन का कारक सन है, हमारे हार्ट का कारक सन है, हमारे ब्रेन लॉजिकल थॉट्स का कारक सन है, सन पूरे बॉडी में हर एक पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी डिग्री वीक हो गई तो हमारा बोन वीक हो गया, हमारा ब्रेन वीक हो गया, हमारा लॉजिकल जो
लॉजिकल एबिलिटी है वो वीक हो गया, हमारी जो थॉट्स हैं, हमारा जो ब्रेन है वो वीक हो गया, फियर हो गया, बिकॉज कि फियर का कारक भी शन ही है, डर का कारक। तो ये इसके लिए भी सन ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हो गई। अगर यहीं पे सन की डिग्री ज्यादा हो गई तो क्या होगा? तो वहां पे फिर आ जाता है कि फियर तो होगा क्योंकि हाई डिग्री है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी जितनी प्रॉब्लम्स मैंने बताई वो तो होंगी ही होंगी, लेकिन इसके अलावा और भी दो चार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दो चार प्रॉब्लम्स में क्या है कि सेविंग्स नहीं हो पाएगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं हो पाएगी, वो व्यक्ति दिखाने में ही अपने पैसे खर्च करता चला जाएगा। वो प्रैक्टिकली जो चीजों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक बिजनेस मैन जो होता है ना, वो चीजों को स्टेप बाय स्टेप करके डिसाइड करता है, फिर उनको इम्प्लीमेंट करता है। ये लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने की कोशिश करेंगे और वहां से धड़ाम से नीचे गिरेंगे, तो ऐसे ये स्टेबल नहीं हो पाते। जनरली मिडिल क्लास की जो बात है हम बात करेंगे, तो वहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादा है कि वहां पे लोगों की जो सन की डिग्री है वो या तो ज्यादा हाई है या तो ज्यादा लो है। अगर बीच का है तो बढ़िया है, यानी कि 10 प्लस और बिलो द 22 बिलो, तो वो परफेक्ट होता है। वहां पे बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, ये जो जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई। परंतु हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सन कारक है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको भी हो सकती है, तीनों को हो सकती है, तीनों में से कोई ऐसा नहीं है जिसको ना हो। पर डेथ की चांसेस जिस किसको होगी, तो डेथ के चांसेस हाई डिग्री वाले को होगी, या फिर जो 10 डिग्री प्लस में है उसको होगी। 10 डिग्री के बिलो में जिसको हार्ट की इश्यूज है उसको बचपन से ही हार्ट की इश्यूज होती है, जिसको बोलते हैं साइनस ट्रैकिया। और उससे क्या होता है कि हार्ट की बीट जो होती है वो नॉर्मली 100 to 120 होती है। यहाँ पे उसकी हार्ट बीट जो होगी, कोई हार्ड वर्क कर दे, कोई फिजिकली ज्यादा दौड़ ले, ज्यादा स्ट्रेस ले ले, तो हार्ट बीट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, 130 140 चला जाता है, किसी किसी का 150 तक चला जाता है। तो ये इसको बोलते हैं साइनस ट्रैकिया। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बचपन से होता है, जन्म से होता है। और उस व्यक्ति को भी पता नहीं होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये हेल्थ इश्यूज एक्चुअली हार्ट में है, कि मेरी हार्ट बीट नॉर्मली नॉर्मल जो होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है, अगर मैं सीढ़ी चढ़ लूँ तो ज्यादा हो जाता है। इस कारण से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, और ना वो बता पाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। इसका भी ट्रीटमेंट है, लेकिन मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट है, एज वेल एज मंत्रा चिकित्सा में इसका ट्रीटमेंट है, हीलिंग में भी इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो हाई डिग्री का होना भी चीजों को लिए पॉसिबल नहीं है, चीजों को 100% होना इम्पॉसिबल कर देता है। लो डिग्री भी चीजों का होना इम्पॉसिबल कर देता है। चीजों के होने के लिए गारंटी के साथ आपको डिग्री इंपॉर्टेंट है प्लानिट की, वो भी 10 to 20 डिग्री। जी। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल द वैल्यूएबल इंसाइट्स। हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ क्या चलता रहता है, फिजिकली भी, इमोशनली भी, एंड थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग विद अस बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट्स। सो बिल्कुल। मुझे ये पूछना है, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है, कैन हीलिंग एंड हम्म। थेरेपी हेल्प इन रिगेनिंग मेंटल पीस आफ्टर डाइवोर्स एंड हेल्प इन मूविंग ऑन? Obviously, it is very important to understand that the mantra therapy, healing, yoga, dhyana, it is very, very important to help you to understand the things, why divorce happened, why the person separated from you. And it will definitely helps to revive your mental ability, as well as revive your body energy, as well revive your working capacity, physical strength, everything will revive through the mantras therapy, through the healing, through the spiritual healing, through the quantum healing, through the Reiki healing, through the just like a counseling also help to revive from those things, as well as the meditation is very important to revive on self। तो जो स्ट्रांग मेंटालिटी के लोग होते हैं इन चीजों से अगर परेशान है, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो अभी गवर्नमेंट का जो रेगुलेशंस है उसमें ये बताया जाता है कि डिप्रेशन में लोग जनरली 1 to 2% जाते हैं। जनरली अगर हम डाटा देखें, रिसर्च का पेपर देखें तो तेज वहां पे, होता है। बट जो जो मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ, सब लोग जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा
जो डिप्रेशन में ना जाता होगा। हाँ, किसी का डिप्रेशन एक दिन का होता है, किसी का एक हफ्ते का होता है, किसी का एक महीने का, किसी का 6 महीने का, किसी का ये एक साल का, डिप्रेशन। किसी का लंबा होता है। यस, हम्म। इट डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट एंड प्लैनेट, कि किस प्लैनेट के कारण ये डिप्रेशन जा रहा है किसी के मतलब साथ। और डिप्रेशन का हम्म, बेसिकली स्टैटिस्टिकली जो हमारे पास डेटा है उससे कि डिप्रेशन कम लोगों को होता है, बहुत जाता है, मतलब बिल्कुल पर्सन बिल्कुल। गोज थ्रू, नंबर ऑफ पर्सन गोज थ्रू डिप्रेशन इज लेस, बट इन रियलिटी इट इज यस, मच मोर हायर। more higher. According to me, 100% people will go through the depression, period of depression. और ये डिप्रेशन कई तरह के होते हैं, रिलेशनशिप के होते हैं, अपने प्रति जो हीन भावना होती है उसके कारण होते हैं, फेलियर्स के कारण होते हैं, ब्लफ के कारण होते हैं, अपने गलत डिसीजंस के कारण होते हैं, कुछ ऐसे काम आप कर देते हैं जो आप चाहते नहीं हैं करना, इलीगल रिलेशनशिप्स के कारण होते हैं, कोई आपके बारे में ऐसी बात जान ले उसके कारण होते हैं, फाइनेंशियल डिप्रेशन होते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन होते हैं। बट डिप्रेशन से ओवरकम करने का एक ही तरीका, दो तीन तरीका है। फर्स्ट है नॉलेज, ज्ञान मार्ग। जो ज्ञान मार्ग हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है हमें। भक्ति मार्ग भी एक मार्ग है, लेकिन ज्ञान मार्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि व्हाई इट इज हैपन, व्हाई इट इज हैपनिंग एज वेल। एंड द भक्ति मार्ग ये है कि ठीक है, जो हो रहा है वो भगवान के ऊपर है, वो अब जो कर रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। चाहे वो मुझे मारे, चाहे वो मुझे उठाएं, चाहे वो मुझे मेरे सम्मान को, मेरी चीजों को हर्ट करें। तो ये जो चीजें हैं, बेसिक तौर पे कोई भी डिप्रेशन हो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है समझना कि सबसे ज्यादा पीड़ित जो डिप्रेशन के या लंबे समय तक डिप्रेशन से परेशान कौन लोग होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनमें फियर फोबिया ज्यादा होती है, फियर्स ज्यादा होते हैं, खोने का डर ज्यादा होता है, कुछ भी खोने का, फाइनेंस खोने का, रिलेशनशिप खोने का। तो आप जिन चीजों की बात कर रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति रिलेशनशिप के ब्रेकअप डाइवोर्स होने के के बाद। बाद, हाँ। हाँ, डिप्रेशन में जाता है, इट्स मीन कि वही डिप्रेशन में जाएगा जिसको फियर फोबिया है, वही डिप्रेशन में जाएगा जो चीजों को हैंडल नहीं कर सकता है, उसके साथ ऐसी चीजें सडन हो गई, वो चीजों को मैनेज नहीं कर सकता है, वो कॉम्प्रोमाइज के मूड में था, बट वो कॉम्प्रोमाइज करने का उसको टाइम भी नहीं दिया गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब ये इतनी सारी जब चीजें हैं तो हम्म। डेफिनेटली वहां पे उसको हीलिंग की जरूरत है, उसको अपनी एबिलिटी को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, अपने सेवन चक्रास को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, प्लेस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, स्थान परिवर्तन भी एक नियम है, स्थान प्लेस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, वहां से वो ओवरकम कर सकता है। Okay, 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 great. And our last question for you is how astrological insights help in building a new relationship after divorce? एस्ट्रोलॉजर्स की एग्जैक्ट बातें जी। सुन के या उनका एडवाइस लेके क्या हमको न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने में डिवोर्स के बाद इजी होता है? आ, उम्मीद उम्मीद एक बहुत बड़ी बात है। और एस्ट्रोलॉजर्स हों या फिर डॉक्टर हों या फिर कोई काउंसलिंग करने वाला हो, या आपके माता पिता हो, या आपके अपने सगे संबंधी हो, एवरीवन ट्राई टू डू बेस्ट फॉर यू। तो सब चाहते हैं कि अपने जो क्लाइंट हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो सगे संबंधी हैं उनके लिए हम अच्छा करें, और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब चीज होता है, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपनी जब बारी आती है तो वहां पे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो रियल कॉज है, जिस जो मूल कारण है आपके प्रॉब्लम्स का, आपके रिलेशनशिप का, वहां पे आप ही डिसाइड कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता होता है कि मेरे साथ चीजें क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या फॉल्ट थी। अब उन चीजों पे अगर हम काम करना शुरू करेंगे, काम करेंगे, तो एक एस्ट्रोलॉजर तभी आपको गाइड कर सकता है कि नहीं, आपने ये गलती किया था, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, और इस एक्सेप्टेंस के साथ इसको अब दोबारा दोहराने की कोशिश ना करें। और आपकी जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होनी है वो इस पीरियड ऑफ टाइम में शुरू होगी, और इस समय से इस समय के बीच आनी है, और वो रिलेशनशिप आपकी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक यूएसए की क्लाइंट थी मेरी, और वहां पे मैंने उनको मैरिज का धोखा हुआ था, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था उनके साथ, इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप के कारण। एक यूएसए का क्लाइंट भी था, उसके साथ भी यही चीज हुई थी। तो वहां पे क्या होता है कि जब हम केतु की बात करें, जुपिटर अगर गलत हाउस में बैठ गया, 8 नंबर में बैठ गया, नीच राशि में बैठ गया, 10 नंबर में बैठ गया, तो वहां पे रिलेशनशिप बनता ही नहीं है।
या बनता है तो धोखे ही होते हैं। तो ये सब प्रिडिक्शन तो इजीली एस्ट्रोलॉजर कर ही देगा, बिकॉज कि जो महादशा होगी ना, महादशा में देखना होगा कि कौन सी महादशा किस चार्ट से हो रही है, उस चार्ट चार्ट से अभी क्या रिलेशनशिप के योग बन रहे हैं, तो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू प्रिडिक्ट कि कौन सा मैरिज होगा, मैरिज होगा, वो भी वो प्रिडिक्ट कर सकता है। बट अगर हम ये कहें कि उस रिलेशनशिप को क्या वो एस्ट्रोलॉजर क्रिएट कर रहा है, तो नहीं, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, ही इज जस्ट प्रेडिक्टिंग कि इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में चीजें हो जाएंगी। और ये उम्मीद कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव कर देता है, जो आप निगेटिव थॉट्स में होते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे साथ ये बुरा होगा, ये सारी चीजें कई बार हम लोगों को झूठ भी बोलना पड़ता है। हम देखते हैं कि उसकी कुंडली में रिलेशनशिप, नेक्स्ट रिलेशनशिप के चांसेस कम है भी तो टेम्पररी ही है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, रिलेशनशिप बनेगा, इस टाइम में बन जाएगा, और वो उसके साथ भी फिर वो अगेन धोखा हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि क्या यहाँ पे हम गलत प्रिडिक्ट कर रहे हैं? तो नहीं, हम तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होने की बात कर रहे हैं। टूटना और जोड़ना ये आपके बिहेवियर्स पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे हम गलत नहीं हुए। लेकिन उम्मीद जरूरी है। अगर हम किसी को निगेटिव कंप्लीटली बता दें कि नहीं तुम्हारा रिलेशनशिप ही नहीं होगा, तो ये झूठा प्रेडिक्शन हो गया, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके मल्टीपल रिलेशनशिप के ऑफर ना मिले हो। यह अलग मैटर है कि वो उस चीज को चूज करता है नहीं करता है। अट्रैक्शन होना ही होना है। अट्रैक्शन एक बार आपको 14 साल से लेकर 18 साल में होगा, 18 साल से 21 साल में होगा, 21 साल से 26 साल में होगा, 26 से 28 में होगा, 28 से 32 में होगा, 32 से 36 में होगा, 36 से 42 में होगा, और फिर चीजें आगे की तरफ जाएंगी। तो जो रिलेशनशिप बनते हैं हमारे 50 साल तक होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, किस पीरियड ऑफ टाइम में रिलेशनशिप होगा? सारे प्लैनेट स्ट्रांग है, सपोज कीजिए कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो उसके इतने रिलेशनशिप होंगे। बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बहुत मेंटली स्ट्रांग है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी जगह से बिलोंग करता है, रिप्यूटेड फैमिली है, तो उसके इतने सारे रिलेशनशिप होंगे, इस एज में होंगे ही होंगे। अब उसके लिए अगर उसकी पत्नी या उस लड़की के लिए उसका हस्बैंड कहे कि नहीं मैं डिवोर्स कर लूंगा, तो ये सब चीजें नहीं चलने वाली हैं। वहां पे लोग कंप्रोमाइज करते हैं, वहां पे हस्बैंड भी कंप्रोमाइज करते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि उनका जो सोचने का तरीका होता है वो ब्रॉड माइंडेड होता है। और जो मिडिल क्लास के सोचने का तरीका होता है, जहाँ पे रिलेशनशिप 2 मिनटों में टूट जाते हैं, वहां पे इन लोग थोड़ा सा सिंक होते हैं, उनकी ब्रेन सिंक होती है, उनके ईगो, डिग्निटी, ये फालतू चीजें उनके दिमाग में बसी हुई होती हैं, तो वहां पे ये चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब बड़े फैमिली की बात करेंगे, वहां तो देखिएगा हमें कि हर एज में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, और हर रिलेशनशिप अच्छा। हेल्दी है। ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है। वो व्यक्ति 14 साल में जिस साल जिससे जुड़ा, हो सकता है उससे शादी हो गई हो, लेकिन फिर 26 साल में, 22 साल में जुड़ेगा, किसी पड़ोसी से जुड़ जाएगा, 26 साल में किसी ऑनलाइन डिजिटली जुड़ जाएगा, किसी फिर अदर रिलीजन, अदर कास्ट भी जुड़ सकता है। तो इट इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उन लोगों के सोच में है जो लोग कंजर्वेटिव माइंडेड हैं, कंजर्वेटिव हैं। तो वहां पे दिक्कतें हैं, वहां पे थोड़ी बहुत चीजें पता चल जाती है किसी के बारे में, तो वहां पे रिश्ते टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली प्रिडिक्ट करता है आपके आने वाले फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में, और 100% करना भी चाहिए। एक उम्मीद देता है, एक आपको चांस देता है, आपको गाइड करता है, आपके फ्यूचर के बारे में बताता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस वैल्यूएबल इंसाइट्स। एंड ये दिस इज सो पावरफुल। आपने जो बात किया, एक एक वर्ड्स, एक एक सेंटेंस, जो हम सबको सुनने की जरूरत होता है। एक दिशा चाहिए होता है जब लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हमारे रिलेशनशिप जब सिर्फ टूटने का ही नहीं, हर दिन आजकल के सिचुएशन जैसे भी चल रहा है, वर्क प्रेशर, फाइनेंशियल इश्यूज, बच्चों का टेंशन, उसमें इतना सारा लड़ाई झगड़ा होना, एंड कभी कभी सीनियर्स लोग कम इन्वॉल्व होते हैं, उनका भी एक इन्वॉल्वमेंट की जरूरत जो है, जो हम यंगस्टर्स लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। तो ये सब चीजें बहुत पावरफुल है। लोगों का समझ बिल्कुल। जितना ज्यादा बढ़ेगा, हम उतना पीसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। मेडिएशन बहुत जरूरी है, फैमिली मेडिएशन बहुत जरूरी है। फैमिली को इसीलिए रखा जाता है। एक चीज और मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगा, राहु के पीरियड में जब भी कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, किसी का भी हो, मंगल के पीरियड में हो आपका,
तो ऐसे रिलेशनशिप के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। शुक्र की महादशा चल रही हो तो उस पीरियड ऑफ टाइम में भी रिलेशनशिप के टूटने के चांसेस होते हैं, या सेपरेशन के चांसेस होते हैं, या पार्टनर के किसी और अफेयर में जुड़े होने के चांसेस होते हैं। अब ऐसे पीरियड में आप इन चीजों को कैसे मैनेज करेंगे? ये तो खत्म है, यानी कि रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका। अब हम्म, यहाँ पे अगर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली हम्म, प्रेशर है, हम्म, चीजें फैमिली के कारण बच जाएंगी। हम्म, चीजें फैमिली के कारण लड़का को मजबूर होना पड़ेगा कि वो रिटर्न बैक आए, फैमिली के कारण लड़की को मजबूर होना पड़ेगा कि रिटर्न बैक आए। अगर फैमिली का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मेडिएशन नहीं है, तो फिर चीजें तो खत्म हो चुकी। वो तो मूव ऑन कर जाएगा, दो दो मिनट में मूव ऑन कर जाएगा। और एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर कर लिया, क्योंकि मुझे इस घर में रहना है या नहीं रहना है, मुझे कुछ ये चीज खाना है या नहीं खाना है, ये इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं। ये हम्म, किसी पे थोपा नहीं जा सकता। और एक बार डिसीजन हो गया तो फिर आपको खाना है। जबरदस्ती अगर पेरेंट्स के दबाव में भी कर रहे हैं तो भी हम्म, उसमें चोरी होगी ही होगी। वो ईमानदारी नहीं आ पाएगी जिस ईमानदारी के साथ चीजें शुरू हुई थी। ओके। और जहाँ पे डोर एक बार टूट के बंद जाती है, वहां पे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक रीजन और भी है चीजों के टूटने का। फिर फैमिली को भी ये बात बताकर ब्लैकमेल करते हैं कई लोग कि डोर टूट चुकी है, टूट चुकी है, और इस डोर को फिर से बांधेंगे तो गांठ तो नहीं जाएगी। और ओके। फैमिली फिर वहां पे खुद पे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग फैमिली है, जो रिप्यूटेड फैमिली है, वो चीजों को गाइड करती है, हम्म, लोगों पे प्रेशर डालती है, सेपरेशन होने की कोई बात नहीं करती है। हम्म, लड़की अगर वर्किंग है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे टाइम देते हैं। कोर्ट भी टाइम टाइम देती है थोड़े समय के लिए, और हम्म, पेरेंट्स भी टाइम देते हैं थोड़े समय के लिए। दोनों एक दूसरे को टाइम देते हैं हम्म, थोड़े देर के लिए। कई बार ऐसे होते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, उसमें भी लोग एक दूसरे को फिर जान लेते हैं कि नहीं इसका एक्स्ट्रा मैरिटल है, फिर भी टाइम देते हैं कि चलो तुम रिटर्न आ जाओ, एक बार हम्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और लेकिन वहां पे अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि आप कितने समझदार हैं, आप चीजों को कितना समझ पा रहे हैं। हम्म, जो चीजें हैं वो नियति है आपके। आप कल अपना खुद का कल नहीं जानते हो। अब वो व्यक्ति किसी रिलेशनशिप में है तो वो जानबूझ के थोड़े ना गया है। उसकी चीजें होनी थी, वो हो गई। मेरे साथ भी तो हो सकती हैं, आपके साथ भी तो हो सकती हैं। इस सब चीज को समझना एस्ट्रोलॉजी गाइड करता है कि ये चीजें जो होनी थी वो उसके इच्छा से थोड़े ना हुई, हो गई। इट इज जस्ट लाइक नियति, डेस्टिनी इसी को बोलते हैं। अब हो गई तो उसके लिए उसको सजा नहीं दिया जा सकता, उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। और ये अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी क्लियर कर सकता है। अब ये क्लियर कर दिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और फिर लोगों को एक अच्छी काउंसलिंग, एक अच्छा मौका मिलेगा दोबारा जीवन स्टार्ट करने का। Thank you so much for all your valuable insight. So we'll close this discussion for today and we'll meet for another session with more जरूर। powerful question, more on-demand question that can change people's way of thinking and change people's बिल्कुल life positively. Yeah. बिल्कुल। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डिस्कस एंड वी कैन शेयर विद आवर पीपल। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। Okay. ओके, Goodbye. नमस्ते। Great day. नमस्ते। Namaskar.